everyone. Let's continue our discussion on the multiple choice questions of chapter 10 Circles of class 9th and questions we were doing from the book R.S. Agrawal. So in question number 26, it is given that O is the center of the circle, angle OAB 20 degree, OCB 50 degree, and we have to calculate angle AOC. So let's mark in the diagram which angle we have to calculate. Angle AOC. This center angle we want to find out. Okay. So let's understand in a separate diagram. So I have drawn only this much. OAB triangle. सिर्फ इतना ही मैंने draw किया है अभी. Just to explain. So OA and OB दोनों radii हैं. So angle A, this is given us 20 degree. Okay, so what about this angle? Angle OBA. Let's name it as angle 1. उसको angle 1 नाम दे देते हैं. Just to ease our writing work. तो angle 1 हमारा कितना हो जाता है 20 डिग्री, क्योंकि OA and OB दोनों रेडियाई हैं, इक्वल हैं. So there is a formation of isosceles triangle. ठीक. In the same way, बिल्कुल ठीक इसी तरह से this one OCB, ये triangle भी कैसा बन रहा है? This is also isosceles triangle. OC is equals to OB. ठीक है. And this angle OCB, angle C हमें 50 डिग्री दिया हुआ है. So isosceles triangle की वजह से ये पूरा एंगल OBC, एंगल OBC ये भी हमारे पास 50 डिग्री हो जाना चाहिए, पूरा एंगल 50 डिग्री. ओके बच्चों, हमें सेंटर वाला एंगल निकालना है ये. लेट मी मार्क इट विद अ रेड कलर. एंगल AOC. ठीक है, AOC एंगल हमें चाहिए. इफ वी ऑब्जर्व द आर्क, विच आर्क इज सबटेंडिंग दिस एंगल at the center? AOC, this angle. So it is subtended by the arc AC, है ना? AC arc is subtended this angle at the center. So end points of the arc are A and C. ठीक है, A और C इन दोनों से सेंटर पे रेडियस ज्वाइन कर रखी है. कोशिश कीजिए ये जो आर्क है, एंड पॉइंट्स AC कहीं और बाउंड्री पे मीट कर रहे हैं क्या? From A and C. So it's quite clear here. A point और C point. इनसे एक कोड ऐसे बन रही हैं जो कि बाउंड्री पे B पॉइंट पे जा रही हैं. So how can we correlate these two angles? This CBA and COA. How can we correlate? One angle is angle subtended at the center. Other angle is angle subtended in the boundary. So center angle is always twice, है ना? And boundary angle is half. So first let's calculate angle ABC. सबसे पहले angle ABC को calculate कर लेते हैं, which will be equals to angle OBC. ये पूरे angle OBC में से angle 1 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ABC एंगल आ जाएगा. पूरे एंगल में से एंगल 1 माइनस कर दें तो पूरा एंगल हमने अभी कितना निकाला था? OBC. पूरा एंगल 50 डिग्री था, एंगल 1 20 डिग्री था. सो बाय दिस एंगल ABC बाउंड्री एंगल इज 30 डिग्री. ओके, तो सेंटर एंगल कितना होना चाहिए बच्चों? सेंटर एंगल AOC must be twice angle ABC. ठीक है, इसका ट्वाइस करेंगे तो 60 डिग्री आना चाहिए. चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कोशिश करते हैं बुक वाले डायग्राम में ही समझने की. हेयर दिस एंगल इज 120 एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगल BAC. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, यूजफुल थिंग, AOB इज डायमीटर. ठीक है, सो एक बार देख लीजिए डायमीटर के एंड पॉइंट्स बाउंड्री पे कहीं मीट कर रहे हैं क्या?
डायमीटर के एंड पॉइंट्स। ओके, सो लेट मी सी। जी हाँ, डायमीटर के एंड पॉइंट्स सी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो डायमीटर वाला एंगल कितना होना चाहिए बच्चों? यस, मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, then my explanation is useful. So angle ACB 90 degree, okay. And another thing you can observe here that these points A, B, C, D, all 4 points, चारों points circle की boundary पे हैं। A, B, C, D, all 4 points are on the boundary of circle। तो ये quadrilateral कैसा हो जाता है? Cyclic। क्वेश्चन में given भी है। This is a cyclic quadrilateral. Okay, so by the property of cyclic quadrilateral, opposite angles का sum कितना हो जाता है? 180. So by this we can say angle B is 120 and it should be 60 degree. ठीक है? So that the sum become 180. तो angle B 60 degree होना चाहिए। एक एंगल 60 हो गया, एक 90 हो गया हमारे पास। सो रिमेनिंग थर्ड एंगल जो हमें चाहिए था, दिस एंगल BAC required angle, it should be 30 degree by angle sum property. So B option is the correct option. Let's see question number 28. In question 28, again a cyclic quadrilateral and AB parallel CD. Okay, and we have to calculate angle ABC. B point वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो या तो किसी तरह बी पॉइंट वाला एंगल निकल जाए या फिर उसके सामने वाला निकल जाए, है ना। तो अगर हम एनी हाउ इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट एंगल डी, किसी तरह हम एंगल डी भी निकाल पाए तो हम साइक्लिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके, सो डी एंगल कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो रहा है। इट सीम्स टू बी ईजी एज द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है तो ए प्लस डी 180 है ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, सो सम ऑफ दीज टू एंगल्स 180, सो बाय दिस एंगल डी 80 डिग्री आना चाहिए। ओके, एंड नाउ यू कैन यूज बी प्लस डी 180 साइक्लिक प्रॉपर्टी, है ना। तो बी एंगल कितना आ जाना चाहिए? सामने वाला एंगल हमारे पास आया है 80 डिग्री, तो बी एंगल आ जाना चाहिए 100, है ना। एंगल बी इट शुड बी 100 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सामने वाला एंगल 80 डिग्री, तो बी एंगल हमारे पास आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 100 डिग्री। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन में सेंटर एंगल 130 दिया हुआ है और हमें एंगल ए बी सी निकालना है। ठीक है, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट एंगल ए बी सी। ओके, तो सेंटर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। सो वी हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन हेयर। बच्चों यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है, बच्चे समझ लेते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बट नोटिस हेयर दिस ए बी सी तीनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे हैं, बट पॉइंट ओ इज सेंटर, है ना। तो ए बी सी ओ इसको साइक्लिक मानने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, सो वी हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन हेयर। बाउंड्री पे आप इसको कहीं भी ज्वाइन कीजिए, इन दिस वे ज्वाइन इट ऑन द बाउंड्री। ठीक है, और इस पॉइंट को हम डी पॉइंट मान लेते हैं। सो नाउ सेंटर एंगल इज 130, सो व्हाट अबाउट बाउंड्री एंगल? बाउंड्री पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा? दैट विल बी हाफ ऑफ द सेंटर एंगल, है ना। एंगल डी बनेगा हमारे पास हाफ ऑफ 130, दैट इज 65 डिग्री। ठीक है, एंगल डी 65 डिग्री। एंड नाउ इट्स क्वाइट सिंपल, बी प्लस डी। अब ये साइक्लिक प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, ए बी सी डी ऑल 4 पॉइंट्स आर ऑन बाउंड्री। नाउ इजीली वी कैन से ए बी सी डी इज साइक्लिक। ओके, सो बी प्लस डी 180, सो बाय दिस एंगल बी हमारे पास आ जाता है 115 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम 180 होना चाहिए ना। सो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेट्स ऑब्जर्व द नेक्स्ट क्वेश्चन 30। ये डायग्राम हमें दिया हुआ है एंड इन दिस ए ओ बी डायमीटर है। ओके,
Lines are parallel. CD is parallel to AB and angle BAD 30 degree. Then angle CAD. Let's mark in the diagram CAD. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है CAD, है ना। सो काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। एक तो एंगल 30 डिग्री हमें दिया हुआ है, वन थिंग डायमीटर इज गिवन एंड लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, चलिए सबसे पहले डायमीटर का यूज़ कर लेते हैं। डायमीटर की हेल्प से वी कैन राइट दिस एंगल 90 डिग्री। एंगल ADB जो हम फाइंड कर सकते हैं पहले हम उन्हें लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। सो एंगल D 90 डिग्री हो जा रहा है, एंगल B 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 हो गया सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल ऑल्सो। एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चों, हाँ एंगल B 60 हमने लिख ही दिया है by angle sum property. Also by using parallel lines property we can calculate this angle. एंगल 1 अगर हम इसको बोलते हैं तो एंगल 1 हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, हमें कौन सा एंगल निकालना है? हमें निकालना है CAD, दिस वन। ओके, सो इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी टाइप से कुछ बनता नज़र आ रहा है। एंगल B आप ऑलरेडी 60 डिग्री निकाल चुके हो। एंगल B आप लोग ऑलरेडी 60 डिग्री बता चुके हो। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, A B D C चारों पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री पे हैं। सो A B D C ये क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो एंगल C हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस एंगल B, दैट इज 180 माइनस 60। तो एंगल B की वैल्यू हमने 60 डिग्री रख दी है, तो एंगल C हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, एंगल C 120 आ गया। ओके, एंगल 1 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री। सो नाउ वी कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल। देखो, एक छोटे से क्वेश्चन में पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी यूज हो गई, साइक्लिक की प्रॉपर्टी भी यूज हुई है, डायमीटर की प्रॉपर्टी भी यूज हुई है। सो नाउ इन दिस ट्राइंगल सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स, एंगल CAD प्लस एंगल C प्लस एंगल 1, तीनों का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, और एंगल C हमने अभी निकाला है 120, माइनस में आएगा, एंगल 1 भी माइनस में आएगा। सो फाइनली CAD ये एंगल भी हमारे पास 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री बचता है। ओके, सबसे पहला A ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप बच्चों ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।